on Customer is King, Role of Technology in Customer Oriented Banking. In this panel discussion, our panelists will speak on serving the tech savvy new generation customers, mobile and internet banking, extension of services through ATMs, linguistic app for reaching out to more customers, anywhere, anytime banking. For this panel discussion, I would like to invite Mr. Ravi Kiran Mankikar, CMD, RKM Consultants, who is also the moderator for this panel discussion. We welcome you, sir. Please have a round of applause. I would also like to invite Ms. Aarti Dhole, CTO, Cosmos Bank. Next, I would invite Mr. Srinivas Rao, CIO, Saraswat Bank. I would also like to invite Mr. Onil Noons, CIO, Vasai Catholic Cooperative Bank. Our last panelist for this discussion is Mr. Akash TK, Senior Pre-Sales Consultant, Manage Engine Site 24/7. Welcome everyone. Over to you, sir. One session we are going to concentrate on the customer. And the topic starts very nicely. Customer is king. And we as cooperative banks believe in servicing the customer, near and dear to us. So आज का जो सत्र है, जो हम इस चर्चा सत्र में बात करेंगे कि कस्टमर जब भी हम हैंडल करते हैं या कस्टमर की जो नीड्स हैंडल करते हैं तो हम कितने सक्षम हैं। यहाँ दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और मेरे पूर्व का काम था एसवीसी बैंक से, और मुझे लगता है यहाँ 4 बैंक है जो 100 के ऊपर उनका एग्जिस्टेंस है। तो ये जो कस्टमर्स है जो 100 के ऊपर है, सॉरी बैंक्स जो है जो 100 साल के ऊपर है, उनके टाइप ऑफ क्लाइंट्स भी अलग है। यानी एक सुपर सीनियर सिटीजन भी रहेगा, सीनियर सिटीजन भी रहेगा, और जो नेक्स्ट जेन बोलते हैं, नया जो यंग क्राउड है, ये भी है। और ये सबकी गरजें अलग अलग रहती है। सो जब भी हम कहते हैं कि कस्टमर इज़ किंग और इतनी वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं और सबको जो केटर करना है, टेक्नोलॉजी तो हर कस्टमर के लिए अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज के सत्र में एक ये हम जान लेंगे कि ये कैसे बैंक्स हैंडल करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी का विषय जब भी निकलता है तो एक चीज़ है कि जिस समय से हम टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी ले, उसको परचेज करने का निश्चय करें और वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने को जावे, तब तक वो टेक्नोलॉजी शायद ऑब्सोलीट भी हो जाती है। यानी द रेट एट विच टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, टू कीप पेस विद द चेंज इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आज का सत्र शुरू करेंगे तो अलग अलग एरियाज से बैंक्स हैं, थोड़े आई वोंट से रूरल बट सेमी अर्बन बैंक से भी हैं। बाकी मेजर बैंक्स जो हैं उनके प्रेजेंसेस भी रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी है। और रूरल कस्टमर का भी जो गरज है वो अलग रहती है, अर्बन कस्टमर की गरज भी अलग रहती है। तो ये सभी जब भी हम हैंडल करेंगे तो कैसे उसको हम आगे करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारी सबसे बड़ी बैंक जो सारस्वत बैंक है, वो कैसे, हाउ यू हैंडल, व्हेन अ कस्टमर रिक्वायर्स
that he wants, and he's quite demanding. See, today's generation is more demanding than the earlier generation. Earlier generation would get a bit operative. Okay, the new generation, they want everything at their fingertips, and we have to balance both. So how would you look at it? Yeah, you're right when you said, customer segments are different. Like you said, customer is king, be it any segment, be it a senior citizen, be it a super senior citizen, or be it a next gen customer. Sabki needs alag alag hai. That is well accepted fact. So from what we have done at our bank is, of course, we have all the digital channels like internet banking, mobile banking, व्हाट्सएप मिस्ड कॉल सर्विस एंड ऑल दैट. इसके अलावा हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस भी है जहाँ पे वी हैव डेडिकेटेड ब्रांच सेल्स ऑफिसर्स who not only serve customers at the branch channel but we go on the at the customer site also. For example, एक corporate है जिसका salary accounts open करना है और we have to go to the customer premises to open an account. So we have technology solutions, tab based banking है, web based digital onboarding solutions hai, so through which we try to cater to the most segments of the customers. Of course, there are some customers who, like super senior citizens, they are not comfortable using mobile app or internet banking. For them also, of course, our branch channels are there, and our feet on street is there for those customers also. So that's how we manage. Onil, I have a question for you. Though you are in the Bombay region, somewhere, I believe that the segment of customers which you look at may be slightly less demanding than what we see in Bombay or Pune. I mean, I may be wrong, but what is your expectation? Because, to fulfill those kind of needs, I mean, how would a bank gear up for that? So that's not true that being in a urban area, customer demands are different. Traditionally, I think the cooperative bank customers are pretty regional, and their expectations from cooperative bank as far as customer service is concerned is very high. They expect personalized service, and while we actually went into digitization platform, upgrading our systems, creating new channels, but unfortunately, I still have to serve senior citizens or the traditional customers with their old style of personal touch. They still need the passbook updated every month, even when we have all the facilities to provide their statements to internet banking. They can download all types of certificates from internet banking, but they want to be present in the bank. So I think as far as customer is concerned, the current problem I would say cooperative banks might be facing is to attract those millennial customers and satisfy them. Traditional cooperative bank customers which need that personal touch, they will still come to branch, they will sit, spend some 10, 20 minutes with the branch manager probably and get satisfied and go. I think the problem remains with the millennial customers, how to attract them. That's still a challenge. Great. And since you talk of that challenge, one of the things which comes to mind is when we talk of technology and especially when we talk of us as a cooperative sector, the vendors who give such kind of services or other vendors who give such kind of platform, they are quite varied and everyone may not have that kind of a maturity to provide. The three of you are all having the topmost softwares like Finacle or Oracle or whatever. And you have that advantage that those are really premium kind of a things. But for the audience in general, one of the aspects which I feel is a bit near and dear to us is that are the other vendors capable of handling such needs of the customer? Are they really equipped? And Artiji, I would like your views on this point, that A, how would you look at a vendor perspective to be in tune with the customer needs? And B, my observation is that for every change, though it is supposed to be part of the CBS, the vendor comes out with a new bill of material. Okay, so how would you address this, or how would like our guests here to look at that? Yeah. Ji. ओके थैंक यू रवि सर. ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये हमारे सबके
हार्ट के नज़दीक क्वेश्चन है, क्योंकि वेंडर इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारे लिए है बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जहाँ पे हम अपना पूरा बैंकिंग वी कैन ऐसे कि हम उस पे पूरा बैंकिंग तोल रहे हैं। तो अभी जैसे सर ने बताया कि जो टॉप बैंक्स हैं हमारे जैसे, तो उन्होंने जो एक 5-6 ऊपर के जो सीबीएस वेंडर्स है, दे आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स बिकॉज दे वांट टू बी ऑन द नंबर वन एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दोज बैंक्स विच आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उनको दे रहे। बट जब हम बाकी वेंडर्स की बात करती है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ challenges are there because lot of startups are coming up and they are providing the technologies, but are they compliant with all those things? Those are actually looked after by the RBI. RBI जो सोचता है कि मेरे यहाँ से कोई भी वेंडर अगर जाता है बैंकिंग के यहाँ पे सर्विस देने, तो उसमें वहाँ सब कंप्लायंसेस वो कर पाता है क्या, जो हमारा रेगुलेटर हमसे बात करता है। तो ये सब कंप्लायंसेस उन्होंने पहले कंप्लीट करने के लिए उनका भी एक प्रोसेस ज़रूरी होता है। अभी जब हम वेंडर इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हम वो स्टार्टअप में क्या क्या देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मेरा कस्टमर बेस है जहाँ पे मैं रूरल सर्विसेज दे रही हूँ, या सेमी अर्बन है या अर्बन है, इन सब में हमको अपने अपने अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हम ये देखना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट या फंक्शनैलिटी ये सब वेंडर जो स्टार्टअप है या जो छोटे छोटे वेंडर है वो दे पा रहे हैं क्या। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज वी लुक इनटू। उसके बाद आता है कि वो जो वेंडर है वो वेंडर अपने पूरे इंडस्ट्री में उसका रेपुटेशन कैसा है, उसका रेजिलेंस कैसा है। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो उसका एक क्रेडिट स्कोर बन जाता है। जैसे हमारे कस्टमर का होता है, वैसे वेंडर का भी एक स्कोर बनता है कि वो क्या क्या इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, कौन से लोगों को सर्व कर रहा है। अगर वो अच्छी तरह से सर्व कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। अगर नहीं है तो उसका सर्विस में हम उनको गारंटी जो पूछते हैं, वो SLA जो बोलते हैं हम, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसमें वो क्या क्या दे पा रहा है। तो ये सब जो अपने अपने जो कंप्लायंस के तौर के ये होते हैं, ये उनसे करवा के लेने के लिए हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट में भी ये क्लॉज डाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी सॉफ्टवेयर हो उसका हम पहले सोर्स कोड ऑडिट और VAPT करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये वेंडर हमको सोर्स कोड ऑडिट और VAPT का आप बोल रहे हैं गारंटी दे रहा है, वो करके दे रहा है, तो इसका मतलब ये वेंडर पूरी तरह से कंप्लायंट है और वो हमको या हमारे कोई भी कैटेगरी को सर्व करने के लायक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमको लेने चाहिए जब हम वेंडर को इवैल्यूएट करते हैं। अभी मेरा एक जब फिननेट का एक सेशन चल रहा था, तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि जैसे हम कस्टमर को एक बोलते हैं ना कि बैंक को जो बोलते हैं कि हम सब बैंक मिलके एक एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, वैसे आई थॉट कि ये जो वेंडर्स होते हैं इन्होंने भी अपना एक नॉलेज बेस बनाना चाहिए, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है तो उसको एटलीस्ट दे शुड हैव वन चेकलिस्ट कि भैया RBI का जो हमारा चेकलिस्ट है उसमें ये बातें हमको कंपलसरी देनी है कस्टमर को, कस्टमर मीन्स बैंकों को। तो बैंकों को जो देना है उसके लिए अगर आप स्टार्टअप या वेंडर कोई भी जो नए से शुरुआत कर रहा है, वो ये सब चेकलिस्ट फॉलो करके हमको दे रहा है क्या। तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि ऐसा अगर ये कम्युनिटी बनता है सर, तो ये इट विल बी वेरी मच यूजफुल टू ऑल द बैंकर्स, लाइक नॉट ओनली अस बट ऑल दिस बैंकर्स विच आर इन द रूरल एरिया, जो छोटे बैंक है और वो बैंक हमको पूछते हैं कि ये वेंडर कैसा है, तो दे विल सेटिस्फाई ऑल दिस थिंग। दैट इज माय ये शायद फेडरेशन या NAFCP का दायित्व हो सकता है यस। कि जहाँ यानी मैडम ने जो पॉइंट मुद्दा उठाया वो बहुत सही है कि हम एज कोऑपरेटिव बैंक्स हम आपस में कितना संपर्क रखते हैं, या कोई समझो हमारे यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट के कुछ क्या डिटेल्स हम देते हैं, क्योंकि दूसरे उससे सावधानी बरते, या कोई सॉफ्टवेयर में अच्छा है तो ये अच्छी चीज़ हम दूसरों को कैसे बताते हैं। अभी विट्ठल भाई हैं, वो उनसे हम पूछ लेंगे कि उनका क्या अनुभव है और आपको कैसे उसका बेनिफिट हो गया है।
जो अभी आपने बात मैडम ने भी किया है कि जो वेंडर का इवोल्यूशंस करने की बात है, वेंडर का मैनेजमेंट करने की बात है, नया नया जो स्टार्टअप के हिसाब से जो वेंडर्स हमारे मार्केट में सब आ रहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वेंडर का इतना इवोल्यूशंस करने के हमारा जो मैन पावर है वो भी इतना काबिल नहीं है कि ये क्या है। जो सेल्स के बारे में आके बात कर जाते हैं, लेकिन आफ्टर जो सेल्स सर्विस इनकी है वेंडर्स की, वो सेल्स सर्विस के बाद में जब हम लोग उनको कॉल करते हैं या तो मेल करते हैं तो पूरा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। तो वेंडर के बारे में बैंकों को अच्छी तरह से पहले नॉलेज लेना चाहिए। आपने जो अभी बात किया है कि जो नापकेब है या तो जो कोई फेडरेशन है, तो इसका अभी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस भी एक चल रहा है। तो ये हमारा नापकेब के चेयरमैन साहब भी अभी आए थे, डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हैं, वो इनको भी एक लिस्ट बनाना चाहिए कि भाई इतने जितने हमारा जो वेंडर है उसका एवोल्यूशंस करके एक लिस्ट इनकी वेबसाइट पे रखना चाहिए कि भाई इतना वेंडर्स है तो वो एलओएस के लिए है, इनके लिए है, वीएपीटी है, आईएसओडी से ऑडिट सर्टिफाइड है। ये सब जो वेंडर्स की लिस्ट है वो भी इनके हिसाब से तैयार करना चाहिए। बैंक की बात मैं करूँ तो जो उसका सबसे पहले तो हमारा जो रिजर्व बैंक आता है, तो इनके आपने जो वेंडर के साथ जो सब एग्रीमेंट किया है वो पहले एग्रीमेंट पढ़ते हैं कि जो आपका एग्रीमेंट है वो सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर की बात होती है या तो सेफ्टी की बात होती है, वो वेंडर के साथ कैसे किया जाता है वो भी हमको करना चाहिए, वो भी है। और आज का जो मेन टॉपिक था कि कस्टमर इज़ किंग, उसके बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो कस्टमर हमारा कोऑपरेटिव बैंक का जो कस्टमर है, अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक या तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के आगे हमारा कस्टमर हमको देख के आता है, मैनेजमेंट को देख के आता है और जो जितनी माउथ पब्लिसिटी है उनको देख के आता है। तो इसको हमारे पास रिटेंशंस करने के लिए या तो इनको अच्छी तरह सर्विस देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम भी यूज़ करना चाहिए। छोटी बैंक है तो वो इतना खर्चा नहीं कर पाएगी, लेकिन इनके किसी बड़ी बैंक है या तो सारस्वत बैंक या तो कोई बैंक है, इनके साथ टाइप करके भी इनका कस्टमर को इतनी सर्विस भी डिजिटलाइजेशन जितनी भी सर्विस है वो भी देना चाहिए। इस तरह से हमारा कस्टमर को हम डिजिटल नहीं देंगे तो वो कहीं भी चले जाएंगे। तो उसको रखने के लिए डिजिटल सर्विस या यूपीआई होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी का प्लेटफॉर्म है, वो सब देने का है। अभी हमारे पास फिनटेक कंपनियां भी बहुत है, तो ये फिनटेक कंपनियों का हम लोग इनके साथ भी टाइप करके कस्टमर को जितनी भी छोटी छोटी भी जो भी ज़रूरियात है वो भी हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा कस्टमर है, तो वो तो क्या करता है कि वो कभी भी बैंक में फिजिकल जाएगा भी नहीं, वो ऑनलाइन सब पूरा अकाउंट भी ऑनलाइन खोलेंगे, उसका ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करेंगे। तो नेक्स्ट बैंक कैसी है क्या है वो भी उनको पता नहीं है। तो इसको रखने के लिए भी हमारा कोऑपरेटिव बैंक को जितना भी हो सके इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है सर। जी बहुत सही है। और एक जो कॉमन मुद्दा आया जो अभी सभी स्पीकर्स ने कहा कि कंप्लायंस, और जब भी कंप्लायंस देखते हैं तो रिजर्व बैंक हर रोज शायद कुछ ना कुछ नई चीज़ मांगती रहती है। अभी आकाश जी हैं, हु इज़ वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर कंप्लायंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो आपका क्या विचार है कि क्या होता है जब भी कंप्लायंस की बात होती है तो वन अंडरलाइंग फैक्टर इज कॉस्ट। बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और सर्वसामान्य बैंक को कभी कभी ये चीज़ें परवड़ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एज अ सर्विस, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, अभी जैसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? रेजिलियंस जब भी बिल्ड करनी है, दैट टू एंश्योर कि बैंक्स में वी पुट दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो वापर सके और एट एन अफोर्डेबल प्राइस। आपके क्या उस पर व्यूज़ हैं? Yes, I think you're right. In fact, I want to thank you for using the word resilience in your question, because when you use the word resilient, you're in a way acknowledging that the journey of providing a smooth experience to the customer is not an easy one. It's going to be a difficult one, and it's going to also throw some defeats at us. Now, the moment we acknowledge that the journey is a difficult one, the next obvious thing that we would do is to prepare for it, right? So we would be preparing for this journey. We would be preparing for the battles, the difficulties, and the defeats that we might have as a bank. Now, from that perspective, the most important thing that any bank would do is beef up their arsenal with the right set of tools
so that they are in a better placed situation to tackle any issues that they face. So this involves a variety of tools like setting up monitoring for their complete IT infrastructure, having firmer vulnerability mitigation strategies, endpoint securities, and so on. And if you look at the market today, as some of my panelists mentioned, there are a huge variety of technologies available for disposable at the end of banks, and you have different banks using different type of technologies. And with this sort of complexity in the technology being used, what happens is the challenges that each and every bank face also becomes a bit unique. But I can tell you one thing: if you look at the vendors out there, they are constantly keeping track of all the technology evolution that's happening and the adoption of these technologies by different banks, and they are quickly adopting their solutions to help these banks in mitigating any problems that might happen, that they might face. And there are a lot of vendors out there who also come up with a lot of educational materials and collaterals where they try to articulate the challenges and experience that a different bank has faced, through during their transition phase, so that the newly emerging banks can leverage that in terms of understanding what kind of challenges lie ahead and how such tools can help such banks grow. So that's one thing that I wanted to add. And also regarding the costing, well, yes, there are multiple tools and multiple vendors who have different type of tools that they offer, and depending on the extent to which the tools are designed to handle different challenges, they are priced in variable ranges. But I'm pretty confident, and I can say this for sure, there are multiple vendors out there who are designing tools to cater small scale banks and co-op banks. So yeah, pricing, broadly speaking, should not be a concern. Like, there are multiple tools out there who would be happy to help you with this. And again, as one of the vendors, I can tell you, we are always open to discussing these sort of challenges with banks on a case by case basis as well. थैंक यू। दो चीज़ें जो डिस्कशन के टाइम उभर आई, एक विठल भाई ने कहा कि नैफकब को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जब भी फॉर्म करेगी तभी शायद एक दृष्टिकोण आ सकता है जहां एक फोरम सेटअप हो जावे और ये फोरम के बीच में कौन से टेक्नोलॉजीज का वापर, विदाउट नेमिंग द वेंडर, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज, कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से स्तर की बैंक को उपयुक्त है और वो हिसाब से वो बैंक में वो जाके उसने इम्प्लीमेंट किया तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये अगर एक एक्सरसाइज करके अगर नैफकब या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एक हमने देखा है कि बहुत सारे बैंकों में ये नॉलेज बेस उतना नहीं रहता। एक वेंडर आता है और कहता है कि ये 4 चीज़ें मिलती हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड्स गिफ्ट टू टेक्नोलॉजी। ऐसे होता नहीं है, उसके दुरुपयोग है या जिसके जो फॉल आउट्स है वो कभी बताते नहीं हैं। और कभी कभी हम बैंक्स उसके मीठे बातों में हम बलि बढ़ जाते हैं और जो एक्चुअली होना चाहिए वो चीज़ें नहीं होते। और जब भी हमें एक किस्सा मुझे ध्यान में है, एक बैंक में एक कोई मॉड्यूल था जो रिजर्व बैंक ने उसको मैंडेटरी किया हुआ है। तो ये वेंडर को पूछा गया, ये है कि आपके पास? तो है। तो क्यों नहीं दिया? तो आपने मांगा नहीं। अभी जनरली हम SLA की बात करते हैं और आरती जी ने वो SLA की जिक्र किया और ड्यू डिलिजेंस का भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि 99 क्या 100% हमारे जो बैंक्स है वो हमारे SLA में लिखते हैं कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये वेंडर देगा। लेकिन फिर भी ऐसे वेंडर्स हैं कि जो SLA में भी लिखे बावजूद भी नहीं देते, और तभी उनके पास वो रिकोर्स होना चाहिए कि वी हैव टू हैव एज अ कम्युनिटी, यानी एट फेडरेशन लेवल हो, एसोसिएशन लेवल हो, नैफकैब लेवल हो, वॉटेवर, कि एक रिप्रेजेंटेशन RBI को करे कि ऐसे वेंडर्स हमें, शायद मैं गलत शब्द वापरूंगा, कि दे होल्ड अस फॉर रैंसम। सो कहीं ना कहीं अनिल जी, आपने भी थोड़ा नया सॉफ्टवेयर अभी लिया, आपको जब भी इम्प्लीमेंट किया और एक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स जो आती है, व्हेन वी से कस्टमर इज किंग, सी वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, हर कस्टमर का उनका परसेप्शन के द्वारा उनका रिक्वायरमेंट्स अलग अलग ही रहते हैं। और आपने एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर लिया है, तो किस प्रकार से कस्टमाइजेशन का आपने
सॉर्ट ऑफ अडॉप्ट किया या ऐसे किया कि सॉफ्टवेयर है, वी विल चेंज आवर प्रोसेसेस टू सूट द सॉफ्टवेयर? तो हम लोग जब भी नया सॉफ्टवेयर लिया कोर बैंकिंग, उस वक्त थोड़ा हाइब्रिड रहा। एक, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना है। जो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो प्रोसेसेस है, जो बड़े बैंक्स भी यूज़ करते हैं, वो हम अडॉप्ट करें। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने हमारे कस्टमर्स के लिए चेंज किए। एकदम जैसा था वैसे के वैसे नहीं रखा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग हो पहले से हो रही थी उसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन रहा, जिसके वजह से कंप्लायंस प्रॉब्लम्स आने लगे। और कंप्लायंस को मिटाने के लिए ये स्टेप थोड़ा लेना पड़ा कि ये हाइब्रिड रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कस्टमाइज करने पड़े, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस जो बड़े बैंकों में होती है वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली। उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि कंप्लायंस, हम लोग का जो ऑब्जर्वेशंस थे आईटी कंप्लायंस के, एकदम नीचे आ गए। क्योंकि और जो जैसे आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम साइन किया, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट जो साइन किया, उसमें क्लियर कट हम 4 चीज़ें मांगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कुछ कंप्लायंस आता है वो, स्टैट्यूटरी का कुछ अगर आ जाता है, और हमारी इंटरनल ऑडिटर्स का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये चारों चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है ऑडिट में, वो वेंडर को वो फुलफिल करके देना है। नहीं तो एसएलए में हम वो चैलेंज करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्चुअली हम लोगों ने लिख के रखा है। और आपका एक जो पहला वाला क्वेश्चन था अबाउट वेदर वेंडर सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है यहाँ पे, और जो अभी मार्केट में वेंडर्स है या इस्टेब्लिश्ड वेंडर्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये वेंडर्स लार्ज बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में सॉल्यूशन दे के अपने पास आए हैं। और वो लोग यही सोचते हैं कि कमर्शियल बैंक में जो बैंकिंग होता है और कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग होता है सेम ही है, क्रेडिट डेबिट यही होता है और कुछ नहीं उन लोग को। लेकिन अपने जो प्रोसेसेस है, कोऑपरेटिव बैंक के प्रोसेसेस है, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सारे अलग रहते हैं। वो नॉलेज इन लोग को नहीं होता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मैं डायरेक्ट कुछ वेंडर्स के साथ प्रोजेक्ट साइन अप किए थे और कंप्लीट फेल हो गए हैं। उसका रीज़न ये नहीं था कि हम लोग ने इवेल्युएट नहीं किया, कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनको ये कोऑपरेटिव बैंक समझ में नहीं आ रही थी। सेम जो हम लोग ने फ्लेक्सक्यूब डिप्लॉय किया लास्ट ईयर, करीब 7 मॉड्यूल्स हम लोग के लिए उनको डेवलप करने पड़े, उनके सॉफ्टवेयर में थे ही नहीं। सिंपल चीज़, उनके पास सीसी प्रोडक्ट नहीं था, ओडीसीसी प्रोडक्ट नहीं था, वो बिल्ड करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब बड़ा वेंडर आप उठा लेते हैं, उसमें एक ये चैलेंज रहता है कि उनको कोऑपरेटिव बैंक का नॉलेज के, वो प्रोडक्ट नॉलेज और वो प्रोसेस नॉलेज नहीं होता है। सो दैट इज हाउ वी हैव बीन हैंडलिंग इट नाउ। राव साहब, इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा किया कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है, ओके, अभी आप सबसे बड़ी बैंक हो, ओके, यू आर प्रोबेबली लार्जर देन इवन सम प्राइवेट बैंक्स, तो तभी ये चीज़ें आप कैसे हैंडल कर सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है एंड मीटिंग दैट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक है कि टुडे विदाउट टेक्नोलॉजी, आई मीन देयर इज़ नो चॉइस, और ज़्यादा जितना कस्टमाइजेशन करे उतना उसका फ्लेवर निकल जाता है। सो कीपिंग द कोर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इन प्लेस, जो कस्टमर की नीड्स हैं वो हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देयर आर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हेन वी एक्चुअली इवैल्यूएट ए प्रोडक्ट, तो हम पहले ये देखते हैं, फाइल फर्स्ट वी विल एक्चुअली फ्रीज आवर रिक्वायरमेंट, हमको क्या चाहिए प्रोडक्ट से, व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये हमको वी गेट इनटू ए डिस्कशन विद आवर बिजनेस टीम्स, उसको बोलते हैं आपको क्या क्या चाहिए ये प्रोडक्ट में टू लॉन्च योर बिजनेस प्रोडक्ट्स और वट एवर। तो देन एक्चुअली वी ट्राई टू फिट इट टू ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो दैट इज़ आइडियल सिचुएशन, लेकिन वो होता नहीं है। सो टिपिकली ये जो प्रोडक्ट कंपनीज है, सो दे मेक अ प्रोडक्ट फॉर द, एक बेसलाइन लेके चलते हैं विच विल सूट फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स और मोस्ट ऑफ द उस सेक्टर के लिए बनाते हैं। सो इट नॉट नेसेसरली दैट इट विल फिट योर
100% रिक्वायर। तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन तो ज़रूरत पड़ती है, बट टू वॉट एक्सटेंट इट इज़ फिटिंग ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, कितना आपके रिक्वायरमेंट्स के इसमें आ रहा है, दैट वी नीड टू चेक। If it is meeting 60 to 70%, it may be a good fit. 80% best fit. So जब multiple products evaluate करते हैं, तो इसमें से देखते हैं, so which is the product where which is suiting your best for your needs. So that's how we go about evaluation. एक चीज़ जो मैं सभी किसी को भी ये आंसर कर सकते हैं कि जब भी हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के सर्कुलर इज़ क्वाइट एक्सप्लिसिट कि ये बैंक की जिम्मेदारी है। और जब भी हम कोई चीज़ आउटसोर्स करते हैं या दूसरे से करवा के लेते हैं, या कई बैंक्स ASP मॉडल पे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एनालॉजी, और that vendor is reluctant to do that kind of compliance. The onus is on the bank. तो ये situations में हम कैसे उसको handle करें? Anyone can answer. Okay, I'll repeat the question. Reserve Bank mandates that all the compliance requirements are within the purview and responsibility of individual banks. So if they have outsourced any service, or if they have given some service to a third party, it is incumbent on the bank to ensure compliance by that third party to all those requirements. So जहाँ वो रिलक्टेंस होता है कि ये भी मैंने देखा है कि कई वेंडर्स बोलते हैं कि हमारा कंप्लायंस से कुछ संबंध नहीं है, वो बैंक का है, तो हम नहीं करेंगे। तो इस दुविधा में बैंक का दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कंप्लायंस करवा के लिए, तो तभी क्या कठिनाइयाँ आती है? ये एनीवन कैन आंसर दिस, और मे बी ऑल ऑफ यू कैन आंसर। आई विल जस्ट ऐड एक दो पॉइंट मुझे इमिडिएटली लगे, जैसे कि अभी अगर वेंडर कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो उसको एक दो तरीके से हम करते हैं। एक तो उसको पेनल्टी में कन्वर्ट करके करते हैं, या फिर यहाँ पे अगर कोई दूसरा फिनटेक इन्वॉल्व करके उसको कंप्लायंस करवा के करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर हमारा उसी वेंडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ उसके बारे में उसको फोर्स करके हम करवा के ले सकते हैं। बट अगर वेंडर कंप्लाई करने में असमर्थ है, देन वी कैन have another vendor to do this kind of this thing compliance. अगर नहीं है तो हमको इस वेंडर से बाहर निकलना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो वेंडर अगर कंप्लायंस करने में असमर्थ है तो इस वेंडर के साथ हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा वेंडर हम हमारे साथ रहेंगे तो हमारा कभी डेटा ब्रीच हो सकता है, कभी हमारे आगे जाके बैंकिंग व्यवहार भी पूरे हो कंप्लायंट नहीं हो सकते या ठप हो सकते हैं। तो बेटर नॉट टू गो विद दिस काइंड ऑफ अ वेंडर अहेड, उसके साथ रिलेशनशिप स्टॉप करना ही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने जब पहला मुद्दा बोला था तो कि वेंडर इवैल्यूएशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ इज़ गोइंग टू डू अहेड इन कंप्यूटराइजेशन में, मार्केट नीश में वो कैसा काम करने वाला है, इसका भी हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट आई। हाँ, फ्रॉम दी पार्टनर कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, एक ये है कि जो भी आउटसोर्स सर्विसेज है उसका एक सर्कुलर है आरबीआई का, जिसमें आरबीआई क्लियर कट डिफाइन करता है कि कौन से सर्विसेज बैंक के आउटसोर्स कर सकते हैं। तो हम लोग को वो फॉलो करना है, नंबर वन। अभी ये जो सर्विसेज है, डिफाइंड सर्विसेज है आरबीआई के, जो आउटसोर्स कर सकते हैं बैंक, तो ऐसे जो पार्टनर्स रहते हैं उनको भी आरबीआई से सर्टेन सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो अगर आप कोई पार्टनर ऑनबोर्ड करते हैं तो उनका सर्टेन सर्टिफिकेशन यानी ऑडिट होके उनका सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं ये कंफर्म कर लेना है। और ऐसा सर ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि पार्टनर कंप्लायंस सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अगर वो जो सर्कुलर फॉलो करता है आरबीआई का आउटसोर्सिंग सर्कुलर, देन एनी पार्टनर हु वांट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज उस सर्कुलर के हिसाब से उसको कंप्लायंस करके ही लेना है। ही हैज टू डू इट, अदरवाइज ही कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज। फिर भी वो कंप्लायंस नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर बैंक की खुद की रहती है। उसका वेंडर जो रिजर्व बैंक तब वो ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई आपका वेंडर्स ने किया है नहीं किया है,
ऑल ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक और बैंक का मैनेजमेंट की फिक्स करती है, रिजर्व बैंक वही है। लेकिन वेंडर मैनेजमेंट का काम कैसा है कि भाई हमारा जो बच्चे को हम लोग पालते पोसते हैं, हमारा मेड को जो हम लोग पालते पोसते हैं, इस तरह हमारा वेंडर को भी पालना पोसता रहता है, तभी हमारा सब कॉम्प्लायंस है वो सॉल्यूशंस होता है सर। राहुल साहब कुछ बात करनी? सो एक तरीका ये है कि ये वेंडर का ना पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। सो व्हाट वी डू एट सारस्वत बैंक इज we engage third party auditors to actually go to the vendor premises. We make a checklist based on the services given by those vendors. वो checklist के हिसाब से वो comply कर रहा है कि नहीं, ये third party auditor जाके vendor के premises में बैठ के audit लेके evidence लेके आता है. So that is how we manage. अगर उसमें कुछ open points आता है, we take up with the vendors management, भाई ये open points है, ये आपको comply करना है. Otherwise we'll penalize you as per the SLA terms. और दूसरा सर, एक अगर ऐसा वेंडर कोई है जो हम बोल रहे हैं कि सर्विस नहीं दे रहा, तो इसके अगेंस्ट एक आरबीआई को भी एक रिपोर्ट जाता है जहाँ पे वो वेंडर ब्लैकलिस्ट होता है। तो वेंडर के साइड से भी ये बहुत उन पे प्रेशर रहता है कि वॉट एवर आरबीआई इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन, तो आपको वो फॉलो करना ही करना है या कंप्लायंस बैंक को करवा के ही देना है। अगर आप लोग कभी ऐसा फेस करते हैं तो देन डायरेक्टली यू कैन गिव दैट वेंडर्स नेम टू द आरबीआई, तो आरबीआई उसको ब्लैकलिस्ट करके सब सब बैंकों को सर्कुलेट करता है। मैडम, आरबीआई का तो इतना वो परव्यू में भी नहीं है ब्लैक लिस्ट, लेकिन हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक का एसोसिएशन रहेगा, हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, हमारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है और बैंकों का जो हमारे पास मेल रहता है, तो हम बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो वेंडर है, ये वेंडर का हमारा जो इतना कॉम्प्लायंस करने का था तो वो नहीं कर पाया है, इतना हम कर सकते हैं। और ये वेंडर के खिलाफ हम लोग पूरा सब बैंक को इन्फॉर्मेशन करके उनका ब्लैक लिस्ट जैसा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक शायद मेरे ख्याल से वो ब्लैक लिस्ट नहीं कर करने पाएंगे। को चालू किया है। बहुत दिलचस्प डिस्कशन हुआ एंड बहुत सारे टेकअवेज हैं। एक, कस्टमर इज किंग, सो वो उसको जो चाहिए वो सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर में या टेक्नोलॉजी में होनी गर्जिश की है। दूसरा, जो वेंडर्स है दे हैव टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर अस कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि चेंजेस सब होते रहते हैं। तीसरा, वी हैव टू इंश्योर कि SLAs आर इन प्लेस, जो भी एग्रीमेंट्स है वो स्ट्रिक्ट है, उसमें पेनल्टी क्लॉज भी होने चाहिए, उसके रिव्यू मैकेनिज्म होनी चाहिए। एंड सबसे जो अहम बात है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका सही वापर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स में हम उसको टाइपिंग करके वापरते, जो मैनुअल लेजर थे वो छोड़ के हम उसको कंप्यूटर में डाले हैं, तो उससे अच्छा रिपोर्ट्स अच्छे हैं, MIS अच्छा है, जो भी उससे हमारा बिजनेस बढ़ा सके उसका हम प्रयास करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रश्न करना है आपसे। ज़रूर। 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। बातें बहुत सारी बहुत देर से दिमाग में आ रही थी, लेकिन इतनी देर की चर्चा में कुछ कुछ मिस हो गई, लेकिन फिर भी कुछ पूछिए याद ना। है। एक तो ये सवाल है कि जो आपने बताया कि रिजर्व बैंक जो है इसके ऊपर एक्शन लेती है, और आपने दूसरी बात बताई आप लोगों ने कि रिजर्व बैंक्स में मतलब हम लोग ये जो भेजे हैं कंप्लाइंस भेजते हैं, तो आज हम इतना सॉफ्टवेयर लेने के बाद, ये सारा कंप्यूटराइज के बाद, हम लोग डिजिटल थी उसके बाद हम ये सब कुछ अपनाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब रिजर्व बैंक मांगती है कि नहीं हमें तो मैनुअल भी दो, तो 50-50 पेज का भी वो लोग मैनुअल मांगते हैं। जब कंप्यूटराइज है, जब डिजिटल सब है, आपके पास जा रहा है, तो इस चीज़ का सवाल हम कहाँ कैसे, आप बताइए। कोई रिजर्व बैंक का यहाँ नहीं है जिससे हम जवाब मांगें। तो ये एक बात है। दूसरी बात है जो आपने बताया कंप्लाइंस, ये रिजर्व बैंक कहती है, क्योंकि मैं टेफकप से हर स्टेट में, काफ़ी स्टेट्स में गई हूँ टेफकप से रिजर्व बैंक की कमेटी में, जब मैं वहाँ जाती हूँ और ये चर्चा होती है, तो वो लोग कहते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी हम उसको हम नहीं कह सकते कि आप किसका लें, किसका कोई बैंक ले या ना ले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मैंने स्वयं सुना है और चर्चा में रिजर्व बैंक ने कहा है, तो कैसे हम क्या विश्वास करें? अच्छा, आपके 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न में बोलता हूँ कि जब भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, यानी क्या कंप्लायंस चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करना चाहिए।
बहुत सारे बैंकों में उन्होंने खुद की इंटरप्रिटेशन करके कंप्लायंस दिए हैं। दूसरे इससे सलग जो बात है कि जब भी आप कंप्लायंस करते हैं तो उसका एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है कि सिर्फ मैंने एक ऑर्डर, मैंने कई बैंकों में मैंने देखा ये करना है, हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर दे दिया ये कंप्लायंस नहीं होता। ऑर्डर देने के बाद वो क्या इम्प्लीमेंट किया है और जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो इम्प्लीमेंट किया है उसका प्रमाण, उसका एक सर्टिफिकेट उसके साथ जोड़ना रहता है। और 90% ऑफ द बैंक्स डोंट डू दिस। देखिए एक सर्टिफिकेट की बात तो अलग हो गई, आपको हम हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कंप्लाइंस भेजते रहते हैं जो आपकी आपकी मांगी होती है, लेकिन उसके बाद वो यही कहते हैं मैनुअल हमें ये भेजो, मैनुअल हमें इतने पेज नहीं, दीजिए। मैनुअल यानी उनको एविडेंस चाहिए। और जब भी हम SAQ की बात करते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर, और हर ग्रेड के हिसाब से वो यानी 79 क्वेश्चंस रहेंगे, 108 क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी है, उसका सर्टिन ऑडिटर से ऑडिट करके एविडेंसेस सबमिट करना गरज का है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा ये था जो ये सॉफ्टवेयर के लिए या इसके लिए हाँ, कोई भी जी। अभी सॉफ्टवेयर का क्या है कि रिजर्व बैंक कोई भी नहीं कहेगी कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर ले या कौन से वेंडर से ले। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो सर्कुलर्स निकाले हैं, अभी CBS हैंडबुक करके एक आई थिंक 39 पॉइंट्स का उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है। तो हर CBS का वेंडर से वो चेकलिस्ट भर के आपको सबमिट करना है। तो CBS का कोई भी वेंडर हो, इट डजंट मेक इट, यानी फिनिकल हो, आईफ्लेक्स हो, टिम्बकटू हो, कोई भी रहने दो, कंप्लायंस जो उस वेंडर ने देना है उसका प्रमाण और एविडेंस उसको देना चाहिए। अभी एक सादी गोष्ट, एक वेंडर से हमारी बात हुई थी, तो बोलते हैं मैं सोर्स कोड ऑडिट का रिपोर्ट नहीं दूंगा। सी, ऑडिट रिपोर्ट मत देना, लेकिन आपने सोर्स कोड का ऑडिट किया है उसका तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सी, कहीं ना कहीं जो RBI की रिक्वायरमेंट है कि दे आर वेंडर इज फॉलोइंग RBI रिक्वायरमेंट्स, उसका सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बरोबर है रवि सर, बराबर बात कर रहे हैं। उसका उन्होंने जो बताया कि ऑडिट सर्टिफिकेट और हम सोर्स कोड को ऑडिट करके लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ अ वेरी मच रिक्वायर्ड कंप्लायंस। और आप जो बात कर रहे हैं मैडम कि आपको यूज़र मैनुअल पूछते हैं, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, तो जैसे लेते हो ना तो उसका यूज़ कैसा होता है, उसका उनका एक खुद का एक मैनुअल होता है, और हम उसको यूज़ कैसा करना है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। अभी जो आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं ना, उसको यूज़ कैसा करना है ये सिर्फ आपको एक मैनुअल रिटर्न प्रोसेस में डिफाइन करना है, और उसके एक 5-6 स्टेप लिख के रखना है, और वो आपको RBI को देना। ये RBI ने गवर्नेंस के तौर पे अभी नया चालू किया जो आप बोल रहे हो। तो इसलिए ये यूज़र मैनुअल क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यूज़र मैनुअल में अपने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसका पूरा का पूरा लिखा चिट्ठा पड़ा होता है कि कैसे यूज़ करना है। अगर ये आपके पास है और आपने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, जैसे कि मैं CBS यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ये यूज़र इस हिसाब से काम करेगा, उसको क्या रोल होने चाहिए, उसको कितना पावर दिया है, एक वन एग्जाम्पल है। तो ये आपको लिख के आपके पास रखना ज़रूरी है। ये RBI का नया गवर्नेंस का तरीका है, और इसलिए वो आपको पूछते हैं, जो आपको एक टाइम बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर वो बना के आप उनको देते हो तो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और सर ने जो बोला वो कंप्लायंस का जो पार्ट है वो तो हमको हर क्वार्टरली देना ही पड़ता है, वॉट एवर वी हैव डन, दैट इज एक दूसरा अनुभव है कि बैंक, कई छोटे बैंकों में उनके कन्वीनियंस के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, और जो ऑडिट कंप्लायंस दिया जाता है वो इनकम्प्लीट रहा है। RBI हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट सच ऑडिटर्स, और उनको सर्टिन हो या जो बॉडी है उनको बोला गया है कि इनको डिबार करो। सो अगर कोई गलत कंप्लायंस भी देता है उस पर भी एक्शन ले जा रही है। सो वी हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल कि हम जो कंप्लायंस देते हैं तो है, नहीं है तो नहीं है, और नहीं है तो इतना समय लगेगा हमको करने के लिए। लेकिन झूठा कंप्लायंस अगर देता है या गलत कंप्लायंस देते हैं तो रिजर्व बैंक इज टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। सर या एक सवाल था
हाँ जी कि हम सभी बैंक आरबीआई एक्ट के अंडर में काम करते हैं। जी। तो जब कोर बैंकिंग आरबीआई ने कंपलसरी किया कि कोर बैंकिंग आपको करना है, तो तब सभी बैंकों ने कोर बैंकिंग करना शुरू किया। तो उसमें छोटी बैंकों को नॉलेज के वजह से मार्केटिंग बेस पे उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया। उस बाद में पता चला कि जब आरबीआई कंप्लायंस करने जाते हैं हम, तब वो प्रोडक्ट उनके इसमें डेवलप ही नहीं है। जब हम उनसे मांगने जाते हैं तो वो डेवलपमेंट को लगते हैं। तो नैपकैप के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आरबीआई को, क्या आरबीआई कौन सा सॉफ्टवेयर लेना ये नहीं बोलती है, लेकिन जो भी कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो भी कंपनी डेवलप कर रही है उनको सर्टिफाई करने का काम आरबीआई को करना चाहिए। जितने भी पैरामीटर लग रहे हैं आरबीआई के कंप्लायंस को, मेरे हिसाब से आरबीआई ऐसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं देगी। वो कोई नहीं भी सर्टिफिकेशन मतलब जितने पैरामीटर लग रहे हैं हाँ, जैसे तो अभी वही मैं कहा, एक सीबीएस हैंडबुक करके उन्होंने ऑलरेडी इशू किया हुआ है। नहीं हैंडबुक से क्या होता है सर, उसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। नहीं होना चाहिए। एक सर ने अभी बताया था ना कि वो सर्टेन ऑडिटर जो होते हैं उनसे आप ऑडिट करवा के लीजिए। मैडम ये तो- कैसे है, जब प्रोडक्ट छोटी बैंक है ना, जब कोर बैंकिंग ले लेती है वापस वो दूसरे इस पे शिफ्ट नहीं हो पाती क्योंकि एक्सपेंस उसका चला जाता है। बराबर। ये लेने के पहले अगर आरबीआई पॉइंट आउट करेगी चेकलिस्ट और उनको सर्टिफाई करेंगी कि आपका ये पैरामीटर में पूरा सॉफ्टवेयर होगा तभी आपको बेचते आएगा। नहीं अभी सर ने क्या Mandatory बोला, होना चाहिए वो जो सब। मैनुअल दिया है उसमें पूरे पैरामीटर्स दिए हैं सीबीएस के। बाद में वो 60 पैरामीटर्स है, राइट? वो 60 पैरामीटर्स आपको दिए हैं, उस हिसाब से आपको सीबीएस चुनना है। अगर आपने पहले ही लिया है, ऐसे बात कर रहे हो, तो देन यू हैव टू ऐड दोज फंक्शनलिटी, वो कंप्लायंस आपको करना ही है। अगर नहीं है तो मैंने जैसे बोला कि यू हैव टू शिफ्ट, उसके लिए कोई अलग दूसरा तरीका ही नहीं। यू हैव टू शिफ्ट टू अदर वेंडर जिन्होंने ये कंप्लाई किया है। ये इसमें से बाहर निकलना नहीं है, ये कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम आरबीआई के अंडर परव्यू में आ रहे हैं ना, तो हमको आरबीआई ने दिए हुए 60 के 60 पैरामीटर को पूरा करना ही है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपने, जैसे सर ने बोला था कि हमारा वेंडर हमारे घर का वो मेड जैसा होता है वैसा, तो उसमें एक तो करवा के लो, उससे अपना कंप्लायंस करो, या फिर यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिस वेंडर टू अदर वेंडर। अभी बहुत सारे बैंक्स अभी फिलहाल में शिफ्ट हुए हैं बहुत सारे सीबीएस से, तो दैट इज ओनली द वे। एनीवे मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि टाइम इज अप। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर अ पेशेंट हियरिंग। थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, इट वाज अ रियल प्लेजर। थैंक यू। Thank you, everyone. We would like to give a token of appreciation to all of you. I would request Ravi Kiran sir to present a token of appreciation to Mr. Vittal Dhanani, CEO, Varacha Cooperative Bank. To Ms. Aarti Dole, CTO, Cosmos Bank. To Mr. Srinivas Rao, CIO, Saraswat Bank. To Mr. Onil Noon, CIO, Basing Catholic Cooperative Bank. To Mr. Akash TK, Senior Pre-Sales Consultant, Manage Engine Site 24/7. I would now request Mr. Ashish to present the token of appreciation to Mr. Ravi Kiran Mankikar, CMD, RKM Consultants.